Hello, my dear children. Welcome back to Technology Series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 4. This is your book and the name of your book is Joyfull Mathematics. So today we are going to do a new chapter. This is chapter number 10 of your book and the name of the chapter is Fractions. So let's start this chapter. So here a few questions are given as a warm-up exercise. Let's do them. Write the fraction for the shaded part. यहाँ पे कुछ shaded part है, उनके fraction आपको लिखने हैं. So in the first one we can see 3 part is shaded and नीचे का हम लिखते हैं the total number of parts. So total यहाँ पे कितने parts हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total is 8. Means हम इसे क्या बोलेंगे 3/8. Similarly, let's do this one. ये 3 part is shaded and total कितने parts हैं? It's 9. तो हम इसे बोलेंगे 3/9. Similarly, you have to do the rest. Now let's move on to question number 2. You have to make a fraction. Fraction बनाना है. Numerator is 2 and the denominator is 5. Fraction क्या बना? 2/5. Similarly, the numerator here is 7 and the denominator is 3. So, क्या fraction बना? 7/3. Similarly, do the rest. Now, let's move on to question number 3. Fill in the blanks. 1/3 is written as 1/3. I hope it's clear to you. Now, 1/2 is written as half. हम इसे half भी बोलते हैं. किसी भी चीज का half करना तो इसका 1/2 पार्ट कर लो. Clear? अब यहाँ पे जैसे D क्वेश्चन लिखा है 1/5 is also written as 1/5. Clear? So similarly, children, you have to complete the rest of the questions. Now let's learn what is fraction. The figures given below are divided into equal parts. यहाँ पे कुछ figures दिए गए हैं, pictures दिए गए हैं, इन्हें हमने equal parts में divide किया है. Some parts of each figure are colored. So जितनी भी figure है उसमें कुछ न कुछ part को हमने color कर रखा है. The fractional number for the colored part is written along with each figure. So ये जो fractional number है इन colored parts का ये लिखा जा रहा है हर एक फिगर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अब जो पहला फिगर आप देखोगे पूरी फिगर को कलर किया है, इसका मतलब इट्स 1 होल. अब जो सेकेंड है उसमें हमने 4 में से 2 पार्ट्स को कलर किया है, विच मीन्स इट्स 2/4. थर्ड पिक्चर में 1 पार्ट इज कलर्ड, सो इट्स 1/3. टोटल 3 पार्ट्स हैं तो 1/3. Fourth picture में 1 part is shaded, so it will be called as 1/4. अब last जो picture है इसमें 3 parts shaded है और 1 unshaded है, so हम इसे कहेंगे 3/4. Now part of whole is called fraction. पूरे whole का कोई भी part हो इसमें हम fraction कहते हैं. Each fraction is written in the form of, जितने भी fraction होते हैं उन्हें हम numerator और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/5 and 7/9. So these two examples are given to you. Now the upper part of the fraction is called numerator. जो fraction का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे हम कहते हैं numerator. And the lower part of the fraction is called denominator. और जो lower part होता है किसी भी fraction का हम denominator कहते हैं. Numerator denotes the number of parts. Numerator क्या बताता है? कितने parts जो है लिए गए हैं from the whole to form the fraction. Means एक पूरे में से कितने parts को लिया गया fraction बनाने के लिए. Now here you can see 3/4. It shows 3 parts of the whole are taken. तो इसका मतलब है कि पूरे में से 3 part को ले लिया गया है. Similarly
3/4 is written as 3/4 in words. जब हम words में लिखते हैं तो हम 3/4 लिखते हैं. Now denominators show the number of equal parts into which the whole is divided. Denominator क्या दिखाता है? सारे equal parts दिखाता है जिसमें एक पूरे whole को divide किया गया है. तो यहाँ पे था ये whole, अब इसे यहाँ पे जितने भी parts को divide किया गया है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है denominator में. Now, what is equivalent fractions? The fractions that have the same value of a part. वो fractions जिनके values क्या होते हैं? Same होते हैं किसी भी part के of a whole, but do not have a different name. लेकिन इनका कोई भी अलग name नहीं होता है. That depends on the number of parts in which the whole is divided. क्या ये डिपेंड करता है उन नंबर ऑफ पार्ट्स में जिसमें ये होल डिवाइडेड है, एंड इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहा जाता है. सपोज रोनी एंड सोनी आर ईटिंग अ पिज्जा. अब ये दोनों बच्चे हैं, ये पिज्जा खा रहे हैं. रोनी हैज 1/2 of the pizza, सोनी हैज 2/4 of the pizza. So अब रोनी ने पिज्जा का 1/2 पार्ट ले लिया है और सोनी ने 2/4 पार्ट ले लिया है. We can see that both have same amount of pizza. हम ये देख सकते हैं कि दोनों के पास जो पिज्जा है वो सेम अमाउंट में गया है, which is 1/2 and 2/4. दोनों ही सेम हैं. So if we reduce 2/4 to its lowest form, अगर हमने 2/4 को lowest form में किया तो क्या बनेगा? We need to divide the numerator and denominator by the HCF of 2 and 4, which is 2. So 2 और 4 का जो HCF है उनसे ही हमें इन दोनों को divide करना पड़ेगा. So when we divide 2 and 4 by 2, we get answer as 1/2. Now forming equivalent fractions. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है? टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. सो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक ही नंबर से. फॉर एग्जाम्पल 1/3 को हमें क्या बनाना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. तो हम क्या करेंगे? 1/3 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2/6 या फिर 3/9. अगर हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सो ये जो 2/6 हो गया या 3/9 हो गया, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. सो हियर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इज 2/6 and 3/9. Now, checking equivalent fractions. Equivalent fraction को कैसे check कर सकते हैं? We can check whether two fractions are equivalent or not. हम इसे check कर सकते हैं कि जो दो दिए गए fraction है वो equivalent है कि नहीं by the method of cross multiplication. Cross multiplication से हम इसे check कर सकते हैं. For example, 3/5 and 6/10 are equivalent fractions. ये पूछ रहा है कि क्या ये जो 3/5 है और 6/10 है क्या ये equivalent fraction है? तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 को 10 से मल्टीप्लाई और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अलग अलग तो हमने क्या देखा? दोनों के आंसर क्या है? सेम. सो वी गेट बोथ द प्रोडक्ट्स इक्वल. दोनों ही प्रोडक्ट अगर इक्वल है इसका मतलब we can say that they are equivalent fraction. We can say कि दोनों क्या है? Equivalent fraction. How to cross multiply is a/b and c/d. तो a और d को multiply करेंगे और b और c को multiply करेंगे. This is cross multiplication. Now let's do this exercise. Exercise number 10.1. Here the first question is you have to find the 5 equivalent fraction of the given numbers. So यहाँ पे जो first number है which is 2/3, let's find out the equivalent fraction of this. तो 2/3 को हमने सबसे पहले divide किया 2 से, so it will be
4/6। अब दूसरा हमने इसको डिवाइड किया है 3 से, दोनों को ही हमें 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? 6/9। Again let's divide it, multiply it by 4। 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, so we get 8/12। Similarly अब 5 से करके देखते हैं, क्योंकि हमें 5 निकालने हैं। So here the answer is 2/5। The answers are the 5 equivalent fraction of 2/3 are, the first one is 2/3, next 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15. So these are the 5 equivalent fractions. So similarly children, you have to find the equivalent fraction of the rest of the numbers. Let's do this J part. So now children, let's find out the equivalent fraction of 3/5. So 3/5 का equivalent fraction जब हम निकालेंगे 2 से multiply करेंगे इसे हम, so it will be now 3 से multiply करते हैं इसे, now let's multiply it with 4. So children, here we have found out the 5 equivalent fraction of 3/5. And what are they? It's 3/5, next 6/10, 9/15, 12/20, 15/25. So children, these are the equivalent fraction of the given number. Similarly, you have to find out the equivalent fraction of the rest of the numbers that are given here. Now let's do question number 2. Here you have to change each of the following fraction into equivalent fraction having denominator 8. Means इन सारे numbers को हमें change करना है और इन्हें equivalent fraction में करना है जिसमें जो denominator है 8 होना चाहिए. So let's do it. So if we want, so let's take this number first. पहले हम 1/2 को लेते हैं. अगर हम चाहते हैं कि 1/2 का डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की टेबल में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो जो 8 के अकॉर्डिंग हो. So it will be 4. So it will be 4 2s are 8. अब सिमिलर नंबर को हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So here it will be 4/8. So जब हमने इसका डिनोमिनेटर इक्वल किया तो ये बन गया 4/8. Similarly, let's do the C part. अब C part में हम क्या करना है? क्वेश्चन है 3/2. Similarly, हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे ताकि डिनोमिनेटर 8 हो सके. And here the answer is 12/8. Clear? Now let's do another question. Let's do this question number 8/64. अब ये ऑलरेडी 64 है, से हमें क्या लाना है? डिनोमिनेटर 8 लाना है. So हम let's divide it first. So here the answer will be 1/8. Let's do this J part. J part को करते हैं. It's 36/72. अब हम क्या करेंगे? इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं. So here children it becomes 1/2. अब हमें इसे 1 में कन्वर्ट करना है. So हम इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. So here the answer will be 4/8. Clear? So जैसे मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं सेकंड पार्ट के, वैसे आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं. Now let's move to question number 3. Change the following fraction into equivalent fraction. ये जितने भी fractions दिए गए हैं इन्हें equivalent fraction में करना है with numerator 16. So जैसे हमने यहाँ पे denominator को 8 किया था वैसे numerator को हमें यहाँ पे 16 करना है. So let's do this
फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. अब यहाँ पे दिया हुआ है 4/5. हमें क्या चाहिए? हमें न्यूमरेटर में चाहिए 16. डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है. सो 4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आंसर आएगा? सो इट विल बी 4. सिमिलर नंबर को हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 5 4 20. सो यहाँ पे न्यूमरेटर 16 करने के लिए हमने क्या किया? 16/20 will take its place. Clear? Let's do the C part. अब 8/4 लिखा हुआ है. हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर चाहिए 16. सो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाएगा? 8 2. सो सिमिलर नंबर को हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? 4 2 8. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 16/8. Clear? Now let's do another question. Let's do this one. I को करते हैं. अब I क्वेश्चन दिया हुआ है 96/24. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सो लेट्स डू इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो जब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आंसर आया 4/1. अब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को 16 करना है. तो न्यूमरेटर को 16 करने के लिए क्या नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आएगा 16. तो जब हमने 4 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 16. सिमिलरली हमें इसमें भी 4 को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 16/4. ये बन जाएगा 16/4. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आपको ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करने हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following pair of fractions are equivalent and which are not? So यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए. आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है और कौन से नहीं. सो 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है. चलिए इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं. सो जब हमने 10/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये क्या आंसर आया? 2/30. मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली लेट्स डू दिस बी पार्ट. इसे भी हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. सो जब हमने इसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश की तो हमने क्या देखा कि 6/7 आ रहा है आंसर. इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है. सिमिलरली अब इन नंबर्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट में हो सकता है. नो, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट नंबर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस एच पार्ट करते हैं. अब जब हम इसे करेंगे, जब हमने इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो आंसर आया 3/7. इसका मतलब दिस इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म. सिमिलरली लेट्स डू दिस वन. सो जैसे हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया आंसर आया 5/9. So this is also equivalent. Essay children, you have to find out the rest of the questions whether they are equivalent or not. Now let's learn the types of fractions. Fractions बहुत सारे तरीके के होते हैं. The first is unit fraction. Unit fraction क्या होता है? The fraction with numerator 1 are known as unit fraction. वो fraction जिसमें numerator क्या होता है? 1 होता है. इसे ही हम unit fraction कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर 1 है, सो 1/2, 1/4, 1/7 एक्सेट्रा. सो ये जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमारे यूनिट फ्रैक्शंस. नाउ द सेकंड वन इज लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर. वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 3/4. Now, what are unlike fractions? Fractions with different denominators are called unlike fractions. वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उन्हें हम unlike fractions कहते हैं. नेक्स्ट इज
proper fraction. A fraction whose numerator is less than the denominator. वो fraction जिनके numerator denominator से छोटे होते हैं. Numerator denominator से छोटे होते हैं, वो होते हैं proper fraction. For example, 9 upon 11, 4 upon 7, 15 upon 23. Now, अब हमने proper fraction पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे improper fraction. A fraction whose numerator is more than the denominator. वो fraction जिसमें क्या होता है, numerator ज़्यादा होता है denominator से, तो ऐसे को हम कहते हैं improper fraction. For example, 5 upon 2, 7 upon 3, 8 upon 6 and 4 upon 4. So यहाँ पे हमने बहुत सारे fractions पढ़े, unit fractions, like fractions, unlike fractions, proper fractions and improper fractions. Now the last one is mixed fraction. A combination of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction. So एक whole number और proper fraction को जब हम mix कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, mixed fraction. For example, 1 upon 2, 3 4 upon 5, 2 1 by 2. Now, how can we convert mixed fraction into improper fraction? Mixed fraction को improper fraction में convert करने के लिए हमें क्या करना होता है? Let's see how can we convert 5 1 upon 2 to an improper fraction. 5 1 upon 2 को हमने improper fraction में कैसे convert किया वो अब हम पढ़ेंगे. So पहला step है multiply the whole number by the denominator. So ये जो whole number है यहाँ पे 5, इसे हमें denominator से क्या करना है, multiply. So हम क्या करेंगे, 5 को 2 से multiply करेंगे. Add the numerator to the product. अब 5 को 2 से multiply करने पे क्या आंसर आया, 10. अब जो है उस 10 में ये जो ऊपर का numerator है उसे प्लस कर देंगे तो बन जाएगा वो 11. This is the new numerator. The improper fraction is formed by writing the same denominator. Improper fraction कैसे बनता है, जब हम same denominator को लिख देते हैं below the numerator, numerator के नीचे. जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 upon 2 is the new improper fraction. Now, how can we convert improper fraction into mixed fraction? अब improper fraction को हम mixed fraction में कैसे करेंगे? For example, 9 upon 4 दिया हुआ है, अब इसे हमें करना है मिक्स फ्रैक्शन में. सो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 9 by 4. हम 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा और यहाँ आएगा 1. सो हियर द मिक्स फ्रैक्शन इज 2 1 upon 4. जो क्वेश्चन है वो हम ऊपर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे होल नंबर की जगह पे. जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा और जो डिवाइजर है वो नीचे आएगा. सो द आंसर इज 2 1 upon 4. Now let's learn how can we reduce fraction to lowest term. Fraction को कम कैसे कर सकते हैं, lowest term में कैसे कर सकते हैं. Here the fraction is given. अब इसे क्या करना है, lowest term में करना है. 12 upon 20 को lowest term में करना है. We first find the HCF of 12 and 20. 12 और 20 का क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाला है. और जब हमने HCF निकाला तो हमने देखा कि दोनों का HCF आ रहा है 4. So we divide both 12 and 20 by 4. क्या करेंगे, 12 और 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे. So चलिए 12 को 4 से डिवाइड किया, 20 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 3 upon 5. So thus 12 upon 20 is the lowest. In the lowest term is 3 upon 5. Now children, let's move on to exercise number 10.2. Here the first question is, which of the following are proper fraction? Proper fraction इनमें से कौन सा? So proper fraction हमने पढ़ा था कि numerator जो है छोटा होता है denominator से. So this is the proper fraction. This one is also the proper fraction. This is also proper fraction. And this one is also the proper fraction. Now, which of the following are improper fraction? अब improper fraction क्या है? हमने पढ़ा था कि improper fraction वो होते हैं जिसमें जो numerator है वो big होता है, denominator small होता है. अब यहाँ पे numerator जो small है, यहाँ पे big है. So here this is the improper fraction.
Again, this is an improper fraction, and here this is an improper fraction. Now let's move on to question number 3. Which of the following are unit fraction? Unit fraction में हमने पढ़ा था कि वो fraction जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 होगा, इसका मतलब वो यूनिट फ्रैक्शन है. सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1, सो ये दोनों क्या है यूनिट फ्रैक्शन. अब यहाँ पे इन दोनों की न्यूमरेटर 2 है, बट यहाँ पे फिर से 1 है और यहाँ पे भी 1 है. सो इसका मतलब जिन्हें भी मैंने टिक किया है वो सारे क्या है हमारे यूनिट फ्रैक्शंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शन? इनमें से कौन सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, बट यहाँ पे कोई भी होल नंबर नहीं, यहाँ पे है. सो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगेन दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. बाकी नहीं है. So I hope children you have understood all these 4 questions. Now let's move on to question number 5. Convert the following improper fraction into mixed numbers. So mixed numbers में हमें convert करना है. तो हमने क्या सीखा था कि जब भी हमें किसी भी improper fraction को mixed number में convert करना है तो हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है. सो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 5 और न्यूमरेटर है 18. तो जब हमने 5 से 18 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? सो द आंसर वी गेट इज 3/5. तो वी हैव कन्वर्टेड इट. क्वेश्चन 2 पर लिख देंगे, फिर रिमाइंडर एंड डिवाइजर. तो क्वेश्चन है हमारा 3, remainder is also 3, and the divisor is 5. So this is our mixed number. Now let's find another question. Let's do another question here. Let's do this H question. 67 is divided by 4. So here children the answer is 16 3/4. 16 3/4. So children जब भी हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो होल नंबर जो हमारे लाइन के बीच में आएगा, इस होल नंबर के हाफ पार्ट में न्यूमरेटर आएगा और हाफ पार्ट में डिनोमिनेटर को लिखेंगे. ऐसे कोई भी नहीं लिखेगा. दिस इज नॉट रॉन्ग. हाफ पार्ट में आना चाहिए. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर D. So 5 से हमने 32 को डिवाइड किया. So here the answer is 6 2/5. So I hope children you have understood कैसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है improper fraction को. Now let's move on to question number 6. Convert the following mixed number into improper fraction. ये जो mixed number है इसे improper fraction में करना है. So मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें जो ये डिनोमिनेटर है उसे इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. सो 5 2s is 10. अब उसमें हम प्लस करेंगे इस न्यूमरेटर को जो कि है 3 और अपॉन में लिखेंगे ये डिनोमिनेटर. सो 5 + 3 becomes 13. So the answer is 13/5. Similarly, let's do this part. C part. हमें क्या करना है? 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. So here the answer is 36 and जो ऊपर 2 है उसे प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 38. So here the answer is 38/9. Clear? Now let's do another question. Let's do this one. 36 में हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है and it is 8180. अब इसमें 4 को प्लस कर देना है and the answer is 184/5.
आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया होगा. So now let's move to question number 7. Which of the following fraction are in the lowest term? अब ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इनमें से कितने लोएस्ट टर्म है? 1 और 5 अब और ज्यादा कम नहीं हो सकते. सो दिस इज इन द लोएस्ट टर्म. 2 और 6 को हम और भी ज्यादा कट कर सकते हैं, तो ये लोएस्ट टर्म नहीं है. अब 5 और 10 को भी हम कट कर सकते हैं, तो ये भी लोएस्ट टर्म नहीं है. 1/2 इज द लोएस्ट टर्म एंड 9/11 को और ज्यादा कट नहीं कर सकते, तो ये भी है लोएस्ट टर्म. Now let's move on to question number 8. Reduce the following fraction to their lowest term. इसमें कुछ fractions इनके lowest term में करना है. So let's reduce it. So the answer is 1/5. अब similarly हम इसे करेंगे. So children, here the answer is 2/3. Lowest term का मतलब होता है कि सबसे छोटे नंबर में उस term को convert करना है. So similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here. I hope that you have understood it. चलो एक क्वेश्चन यहाँ से भी करते. Let's convert them into the lowest term. 0 कट गया. So here the answer is 1/3. This is the lowest term. Similarly, let's do this m part. So here children, the lowest term is 7/9. Similarly children, आपको इन दोनों नंबर्स, इन सारे नंबर्स को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. Now comparison of fraction. कैसे हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं? Comparison of like fractions. To compare like fractions, we compare their numerators. अगर like fraction की बात की जा रही है तो हम क्या करते हैं, इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. तो 4/7 is greater than 3/7. Similarly, 11/3 is smaller than 14/3. The fraction with the greater numerator is greater for like fraction. Like fraction के केस में क्या होता है, जो भी नंबर है अगर वो like fraction में है तो उसके न्यूमरेटर में जो भी बड़ा है वही सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा. Now the second point is comparison of unlike fraction with same numerator. So unlike fraction को compare करना है जिनके numerator same है. So to compare the unlike fraction with same numerator, we compare their denominator. हम इनके denominator को compare करते हैं. और हमने क्या देखा, 7/11 जो है 7/5 से छोटा है. Similarly 3/5 जो है 3/7 से बड़ा है. The fraction with the smaller numerator is greater. जिसका denominator जो है small है वो बड़ा हो जाता है. For unlike fraction के केस में with same numerator, जिनके numerator same है. Now the third point is saying comparison of unlike fraction with different numerators. Unlike fraction को हमें compare करना है अलग अलग numerators के साथ. To compare unlike fraction with different numerators, we first convert unlike fraction to like fraction. हम क्या करते हैं, unlike fraction को like fraction में convert करते हैं. So here the first example is compare 2/3 and 3/12. So हमें 2/3 और 3/12 को compare करना है. तो हम क्या करेंगे, we convert them into like fraction. पहले हम इन्हें like fraction में convert करेंगे. So दोनों हमने 3 और 12 का LCM ले लिया है. सो जब मैंने एलसीएम लिया तो आंसर आया 12. अब हमें जो डिनोमिनेटर है वहां पे 12 चाहिए, तो 12 लेने के लिए हमने क्या किया, 3 में 4 को मल्टीप्लाई किया और ऐसे 2 में 4 को मल्टीप्लाई किया. तो आंसर आया 8/12 और यहाँ पे आया 3/12. सो 8/12 एंड 3/12, अब ये दो नंबर हो गए हमारे पास. अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है. तो यहाँ पे जैसे 8/12 बड़ा है वैसे 2/3 जो है बड़ा है 3/12 के मुकाबले. ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड भी दिया है विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है.
इस मेथड में क्या करते हैं, हम पहले न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने 12 2 ज़ा 24 किया, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 है। सो यहाँ पे 24 बड़ा है या 9 बड़ा है? सो ऑब्वियसली 24 बड़ा है, तो यहाँ पे सेम हमने तरीका अपनाया है, 2/3 is greater than 3/12. Now children, let's learn the ordering of fractions. क्या होता है ordering fraction? We can arrange fraction in ascending or descending order. हम fractions को ascending या फिर descending order में arrange कर सकते हैं. Example is given here. Write the following fraction in ascending order. Fraction को हम ascending order में लिखते हैं. So here the question is 1/6, 1/4 and 2/3. Ascending order means छोटे से बड़े की तरफ लिखना है. So let's see the solution. What is the solution here? We convert them in like fraction. हम इन तीनों को पहले like fraction में convert करते हैं. So 6, 4 और 3 का हमने क्या लिया है यहाँ पे LCM लिया, और LCM लेने के बाद आंसर आया 12. तो 12 आंसर आना चाहिए, डिनोमिनेटर आना चाहिए. तो 12 लाने के लिए हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है. अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1/6 है वो 2/12 बन चुका है, 1/4 3/12 बन चुका है और 2/3 8/12 बन चुका है. सो ये सारे आप लाइक फ्रैक्शंस में आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, इन्हें जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो असेंडिंग ऑर्डर में हम जब अरेंज करेंगे, सो दिस इज द ऑर्डर 1/6, 1/4 and 2/3. Now the next question is write in descending order. Descending order में लिखना है. नंबर्स दिए गए हैं ऊपर के, आप देखो सबके जो न्यूमरेटर है वो सेम है. The fraction with the smallest denominator is greater in unlike fraction. अब क्योंकि एक unlike fraction है तो इसमें जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे the fraction with the smallest denominator, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा नंबर है. एंड इन विद द सेम न्यूमरेटर. तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे. जब हमने कंपेयर किया तो 2, 4, 5, 6 एंड 7 हमने इसे इस कैटेगरी में लिखा है. सो जिसका डिनोमिनेटर सबसे क्या है, बड़ा छोटा है, वो नंबर सबसे बिग है यहाँ पे. सो यहाँ पे 3/2, then 3/4, now 3/5, 3/6 and 3/7. So this is the way we arrange these numbers. Now let's move on to exercise 10.3. So here children, here we have to compare the following fractions. Fractions को हमें compare करना है. So 2/3 and 1/4. Which one is the greatest? So here 2/3 is the greatest. हमें पहले क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में. जब हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया तो आंसर आया 12. अब 12 आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी 12 आंसर चाहिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. क्या क्वेश्चन बना, 8/12 and 3/12. So 8/12 means 2/3 is the greatest number. Similarly children, आपको बाकियों के भी जो है फाइंड आउट करने हैं. कंपेयर करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट like this. Now let's find this. Let's do this one. 5 और 8 का हमें लेना है LCM. So LCM is 40. अब हमें जो है क्या करना है, 3/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, we will get 40. So 5 8s. So ऊपर भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है. Similarly,
द नेक्स्ट वन 7/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आए 40? ऑब्वियसली 5 से करेंगे, सो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो द आंसर इज 24/40 and 35/40. कौन सा बड़ा है? This one. So 7/8 is the greatest number. So children, like this, you have to find the answer of all these questions. Now let's move on to question number 2. Question number 2 में भी हमें क्या करना है? हमें we have to put the correct sign. Correct sign लिखना है हमें. तो उसके लिए first we have to convert this mixed into the improper fraction. So 3 ones are 3 plus 2 5. 5/3 and 5/4. ये दोनों दिए हुए हैं. So 3 4 का एलसीएम निकाला हमने तो आंसर आया 12. अब हम जो है इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. So the answer is 20/12 and 15/12. So कौन सा बड़ा है? 20/12, which means 5/3. This one. This first one is the bigger number. Similarly, children, you have to do the rest of the questions. ऐसे ही आपको इन्हें convert करना है पहले improper fraction में, and then you have to check which number is the greatest one. Now let's move on to question number 3. Question number 3 कह रहा है you have to arrange the following in ascending order. इन numbers को हमें ascending order में करना है. तो first जो है इनके नीचे के जो denominator हैं वो same है. तो हम इसे ascending order में कैसे arrange करेंगे? 5/6, then 7/6, then 8/6 and 9/6. क्योंकि पहले से ही सेम डिनोमिनेटर के साथ है. नाउ लेट्स डू दिस सी पार्ट. अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो सेम है. सो जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो इस केस में जो भी नंबर जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे बड़ा होता है. तो सबसे बड़ा है 9/6, 9/4, 9/3 and 9/2. So children, we have done 2 questions. ऐसे आपको बाकी जो questions हैं वो complete करने हैं. Now let's move on to question number 4. Here you have to arrange the following in descending order. Means बड़े से छोटे में convert करना है. So children, here the first question is नीचे के सारे numbers same हैं, तो अब क्योंकि हमें इसे descending order में करना है तो हम पहले लिखेंगे 9/10, next 7/10, 6/10 and 5/10. Similarly, अब ये जो f पार्ट है यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जो अलग अलग है. सो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो इस केस में क्या होता है? जो नंबर जो सबसे जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम रहता है वो सबसे बड़ा होता है. सो 2/3, 2/5, 2/7 and 2/9. So this is a sequence, children. You have to do like this. So children, this is a sequence we have to do like this. Now let's learn addition of fractions. So how can we add fractions? Here the first example is Hari Singh is planting flowers in the raised bed. So वो flowers को plant कर रहे हैं. On Monday he has finished 2/8.
सो उस बेड का 2/8 पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया. ऑन ट्यूसडे ही प्लांटेड 3 of the 8. And how much part of the bed he has planted altogether with plants? So मंडे को उन्होंने 2/8 किया था और ट्यूसडे को उन्होंने 3/8 किया था. टोटल उन्होंने कितना किया? इसके लिए हम क्या करेंगे? We have to add both of these. So to know that these fractions are like fractions, so to add like fractions we simply add the numerator and write the common denominator. So इस केस में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को वैसा ही छोड़ देते हैं जो है, सेम डिनोमिनेटर लिखते हैं, बट ऊपर की जो न्यूमरेटर है उन्हें ही हम ऐड करते हैं. सो यहाँ पे 2/8 प्लस 3/8 है, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/8. नाउ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो वो तो थी लाइक फ्रैक्शंस की बात. अब हम पढ़ रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं. सो यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए 2/3 और 1/5. अब इन्हें हमें क्या करना है? ऐड करना है. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन. हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 और 5 का पहले क्या किया है? एलसीएम लिया है. सो जब हमने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो ये बन गया 15. अब हम क्या करेंगे? सो चिल्ड्रन हमें पहले जो है इनका एलसीएम लिया, वो 15 आया. अब हमने 2/3 में 15 डिनोमिनेटर लाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई किया, सो आंसर आया 10/15. अब हमने 1/5 में 15 डिनोमिनेटर लाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 3/15. अब हम क्या करेंगे? इस 10/15 और 3/15 को ऐड करेंगे. ऐड करने पे आंसर आ रहा है 10 plus 3/15, which is 13/15, and this is the answer. So similarly यहाँ पे ये कंपेयर किया गया है कि जब हम 2/3 और 1/5 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 13/15. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. एंड 5 के मल्टीपल्स है 5, 10, 15, 20, 25. अब दोनों में क्या कॉमन है? 15 इज द कॉमन, इसलिए वो उसका एलसीएम है. नाउ एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ लेट्स लर्न द एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? सो यहाँ पे चिल्ड्रन एग्जांपल दिया गया है 2 1/3 एंड 1 1/2. यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं. अब इन्हें ऐड कैसे करना है? सो पहले हम इन्हें प्रॉपर में कन्वर्ट किया. क्लियर? 2 3 6 and 6 plus 1 7, तो 7/3. यहाँ पर 2 1 2 plus 1 3, 3/2. सो अब हमने इन दोनों को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. फिर हमने इनके डिनोमिनेटर को चेंज किया, एलसीएम निकाल के. एलसीएम निकाला तो आंसर आया 6. अब 6 आंसर लाने के लिए हमने 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया और 7 से 2 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 14/16. सिमिलरली 3/2 के केस में हमने 6 आंसर लाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी वापस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 9/6. अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे. 4/6 एंड 9/6 को प्लस कर दिया, तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो एक ही रहेगा. ऊपर के दोनों नंबर प्लस किए तो आंसर आया 23/6. अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हमने इसके आंसर को वापस से मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया. और वो कैसे किया? 23/6 को हमने जब डिवाइड कर दिया. सो हियर द आंसर इज 3/5/6. 3/5/6 ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. Now let's move on to exercise number 10.4. Add the following. Here we have to add these two numbers. First में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम बस ऊपर के नंबर्स को ऐड करेंगे. तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर आता है 21/12. अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है इनके सेम नहीं है, तो हम इनके डिनोमिनेटर की क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे पहले. सो जब हमने इनका एलसीएम लिया
आंसर आएगा 12. So here children, the denominator is 12. अब 12 से हमें इनको सेम करने के लिए क्या करना होगा? 5/6 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि डिनोमिनेटर में 12 आएगा? So we will multiply 2. So similarly we have to multiply 2 here. तो आंसर आया 10/12. Similarly 1/12 में because it's already 12. 12 तो इसका पहले से डिनोमिनेटर है, तो हम 10/12 प्लस 1/12 करें. तो जब हमने इसे प्लस किया तो आंसर आया 10 + 1 is equal to 11/12. So this is the answer of this B question. I hope it's clear. Now children, let's do another question. H question करते हैं. So अब इन दोनों के डिनोमिनेटर आप देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है. तो हम इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है इनके हम ले लेते हैं LCM. And the answer is 30. So यहाँ पे चिल्ड्रन जो LCM आया है वो है 30. अब हमें क्या करना है? 11/15 को कन्वर्ट करना है, और उसके लिए क्या करेंगे? हम 2 टाइम्स करेंगे. 15 2s are 30. Similarly यहाँ पे भी 2 टाइम्स करेंगे. So 11 2s is 22. अब जो दूसरा नंबर है 1/6, इसे भी हमें 30 में कन्वर्ट करना है. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. So 6 5s are 30. ऊपर भी हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5/30. अब क्योंकि हमारा जो आंसर बन गया है 22/30 प्लस 5/30, तो हम यहाँ पे लिख देते 22 + 5, तो आंसर हो जाएगा 27/. So children, this is our answer. So similarly children, you have to do the rest of the questions. Now again here we have to add. इस क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भी हमें ऐड करना है. So let's do 2 questions. 2 questions में करूंगी, rest you have to do on your own. First हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे प्रॉपर में करना है. So 3 4s are 12 + 1 13. So it is 13/4. और जो दूसरा नंबर है वो है 3 2s are 6 and 7 8. So 8/3. अब दोनों का एलसीएम दिया हमने 4 और 3 का, तो एलसीएम बना 12. अब 12 से हमें क्या करना है? इन्हें 13/4 आंसर आना चाहिए 12, डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए. तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली ऊपर भी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. So it's 39/12. Similarly 8/3 को भी हमें 12 में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. So ये बन जाएगा 32/12. So अब इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है? So 39 + 32. 39 + 32. So जब हमने 39 को 32 से प्लस किया तो आंसर आया 71. So here the answer is 71/12. 71/12. अब इस 70 क्योंकि ये मिक्स में है, चलिए इसे मिक्स में कन्वर्ट करते हैं. So अब हमने 71/12 को मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 से हम 71 को. So here the answer will be 511/12. So children, I hope that you are understanding it very well. 71/12 था, इसे हमने कन्वर्ट किया मिक्स में, तो आंसर आया 511/12. Now let's do this question, D part. So 3 7s are 21 and
22. सो ये है 22/3. इसको ऐड करना है. 2 1 2 + 1 3. 3/2. सो जब हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया तो आंसर आया 6. अब हमें 22/3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना. इट विल बी 44. सो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आया वो है 44/6. नाउ लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वन. 3/2 है. हमें चाहिए 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को. सो आंसर इज 9/6. अब 44 में जब हमने 9 को ऐड किया तो आंसर आया 53/6. सो ये है हमारा आंसर 53/6. अब हम इसे जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स डू इट. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते, सो 6 से हमने 53 को डिवाइड कर दिया. सो द आंसर इज 8/5/6. सो चिल्ड्रन, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. कैसे हमने निकाला इनका, कैसे इन्हें हमने कन्वर्ट किया मिक्स से जो है इम्प्रॉपर में, फिर इनकी जो है इनको ऐड किया और वापस से हमने मिक्स में से आंसर को कन्वर्ट किया. सो सिमिलरली चिल्ड्रन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. Now let's move on to the next question. Here you have to add the fractions and convert them into mixed fraction. तो इन्हें ऐड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट. सो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे. सो एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगी, बाकी आपको खुद से करने हैं. सो हमने 4, 8 और 8 का एलसीएम लिया और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आंसर आता है is equal to 8. So 8 is the LCM of this number. अब हम, क्योंकि इनमें ऑलरेडी 8 लिखा हुआ है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे. सो 3/4 को हम 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी 6/8. तो हम यहाँ पे 6 को प्लस कर देंगे. सो द आंसर इज 12/8. So I hope children you have understood it. ये 3 पार्ट वाले भी, 3 fractions वाले भी हमें ऐसे ही करने. So similarly you have to do the rest of the questions. Now let's learn the subtraction of fractions. Fractions को कैसे subtract करते हैं. So same जैसे हम addition को करते हैं वैसे हम subtraction को भी करते हैं. The procedure is the same. Let's see the example. You have to subtract 5/8 from 7/8. So 7/8 में से हमें 5/8 को subtract करना है. So हमने देखा 7/8 minus 5/8. दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया, दोनों को subtract किया तो आंसर आया 2/8. आंसर आने के बाद हमने इसे जो है क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है. ओके चिल्ड्रन, वन थिंग इज लेफ्ट. यहाँ पे हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी करना था, वो हमने किया नहीं है. 8 से 12 को डिवाइड कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. सो हियर द आंसर इज 1/4/8. इज इट क्लियर? So let's move on to the next question here. Subtraction of unlike fractions. So जब हम subtract करते हैं unlike fractions को, means 3/7 minus 1/4. So first convert them into like fractions. पहले हमें इन्हें LCM लेके like fractions पे convert करना है. So LCM लेने पे 28 इसका LCM आया और अब ये like fractions में convert हो चुके हैं, which is 12/28 and 7/28. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने का आंसर आया 5/28. नाउ हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स को पहले हमें करना है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर का हमें निकालना है एलसीएम
और उसके बाद इन्हें कन्वर्ट करना है and their LCM should be the same. LCM इनके सेम होने चाहिए, तो उसे हमने कन्वर्ट किया. उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन LCM लेके सब्ट्रैक्ट किया एंड द आंसर इज 13/12. सो अब इस 13/12 को हमने मिक्स में वापस कन्वर्ट कर दिया, विच इज 1/12. Now let's do this exercise 10.5. Here we have to subtract the following. हमें subtract करना है इन numbers को, क्योंकि ये जो है like fractions हैं, तो इनका denominator same है. So we have to just do 8 minus 6, which is 2/5. Similarly, इस क्वेश्चन को करते हैं. यहाँ पे मिक्स में है, तो 6 1 6 and 6 plus 5 is 11. So 11/6 minus 1/6 दिया हुआ है. अब 6 दोनों के कॉमन हो गए हैं, तो 11 minus 1 which is equal to 10/6. I think it's clear to you. Now let's do this one. 5 5s are 25 and then 2, which is 27/5 minus 5 to the 10 and 1 11. So it is 11/5. दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने 27 में से 11 को माइनस कर दिया. सो यहाँ पे जो आंसर आया है वो है 6 and 1. So ये है 16/5. I hope this is also clear to you. Now let's solve this question number 2. Here यहाँ पे जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है. सो इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है? वी हैव टू टेक देयर एलसीएम. अब जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो इट इज 40. सो चलिए 40 के साथ सॉल्व करते हैं. अब 2/5 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 40 आएगा? 8. सो दोनों जगह पे हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आता है 16/40. सिमिलरली 3/8 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा? आंसर 5. सो इट इज 15/40. अब 16/40 और 15/40 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो दोनों को एलसीएम हमने कॉमन लिया, तो आंसर आया 16 minus 15, which is equal to 1/40. I hope it's clear to you. So children, now let's do another question here. Let's do question number G. G को करते हैं. Same to be followed, same process to be followed. हमें पहले इनको improper में करना है. So 3 3s are 9 and 9 plus 1 10. So 10/3. Again 4 2s are 8 and 8 plus 1 9. So 9/4. अब इन दोनों के एलसीएम निकालने हैं, which is 12. अब 12 एलसीएम निकाल लिया है, तो अब देखते हैं 10/3 में हमने कौन सा नंबर जो है मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आएगा 12. सो इट्स 4. सो ये बन जाता है 40. अब सिमिलरली हमें 9/4 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आंसर आए. सो यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर इज 27/12. अब 40/12 minus 27/12. 12 को हमने कॉमन ले लिया, 40 minus 27. अब जब हम 40 में से 27 को माइनस करते हैं तो we get 30. So here the answer is 13/12. So क्योंकि ये सब कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है,
सो चलिए हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 13/12 इज आंसर. अब हमने इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. सो 1 times 1 will come. So the answer is 1/12. 1/12. So children, I hope this is clear to you. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now let's do some word problems. The first example is here. 3 bags of sugar weight 2 1/3 kg. 4 1/7 kg and 7 1/6 kg. What is the total weight of the bags? Total weight निकालने के लिए हमें क्या करना है? First bag को हमने पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड बैग के वेट को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एंड देन थर्ड बैग के वेट को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. अब आपसे कहा जा रहा है कि 3 बैग शुगर थी और टोटल वेट निकालना, मींस वी हैव टू ऐड. सो अब तीनों को हमने जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम निकालेंगे. इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे. 3, 7 और 6. सो जब हमने 3, 7 और 6 का एलसीएम निकाला तो वी गेट द एलसीएम विच इज 42. नाउ अब हमने इन तीनों को इक्वल किया 42 के अकॉर्डिंग. सो वी गेट 98/42, 174/42 एंड 301/42. और अब जब इन्हें हमने ऐड किया तो वी गेट 191 kg upon 14 kg. सो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिला. दिस इज द एक्चुअल आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. I hope this is clear. Now let's look at another example here. Out of 6 1/4 hour in school, Rajat spent 2 1/4 hour in creative activities. So school में इतने घंटे रहने के बाद रजत ने इतने घंटों को creative activities में खत्म किया. How many hours does he study? उसने कितनी देर पढ़ाई की? So टोटल में से कुछ हमें हटाना है एंड रेस्ट ऑफ द आवर्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो टाइम ऑफ स्टडी दिया गया है, दोनों को हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया एंड देन एलसीएम लेके हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. सो रजत स्टडी फॉर 4 hours. उसने 4 घंटे पढ़ाई. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड the examples. Now let's do the exercise given in your book. So let's do exercise 10.6. The first question here is Isha traveled 1/4 kilometer on Monday, 7/16 kilometer on Tuesday and 5/4 kilometer on Wednesday. How much total distance did she travel? सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? वी विल ऐड, क्योंकि तीनों दिन के डिस्टेंस आपको बताने हैं. तो मंडे को उसने ट्रैवल किया था 1/4, ट्यूसडे को उसने किया था 7/16 और वेंसडे को उसने किया था 5/4. अब हम इन सब के जो डिनोमिनेटर है इनके एलसीएम लेते हैं. सो 4, 16 and 4. So here the LCM is 16. Now let's find out the correct answer here. अब 16 LCM है तो हम तीनों को इक्वल करना है. 1/4 को 16 के इक्वल बनाना है. So हम क्या करेंगे? We will multiply with 4. So it will be 4/16. अब जो सेकेंड था 7/16, इट्स ऑलरेडी 16, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है. 7/16 ये पहले सही है. 5/4 है, इसे फिर से हम 16 में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू राइट दिस. सो वी हैव टू ऐड 20/16.
So children, let's add all these three, Monday, Tuesday and Wednesday को उसने कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए. Now let's find out the let's take the LCM together and add all these numbers. So it's 31 upon 60. So she traveled 31 upon 16 kilometers. अब हम इसे अगर कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में तो ये बन जाएगा 2 1 by 16. So children, I hope you have understood this question. Now let's move on to the next question. Let's do this question number 7. Out of his salary, Rohan spent 1/5 on rent. So 1/5 उसने रेंट पे दे दिया, 1/3 on food and 1/6 on clothes. तो अपनी सैलरी से उसने इतने पार्ट को खत्म कर दिया. What fraction of his salary he saves? तो उसने कितनी सैलरी सेव की. So for example उसकी सैलरी थी 1, उसमें से उसने कितने पार्ट जो है खर्च कर दिए. तो ये जो खर्च वाले पार्ट में पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टोटल 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. So let's find out the LCM of all these numbers. So here the LCM is 30. अब 30 है, 30 को लाने के लिए 1/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 and ऊपर भी करेंगे 6. So it is 6 upon 30 plus 1 upon 3 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10. So it will be 10 upon 30. Similarly 1 upon 6 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. So ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 5 upon 30. अब हमने क्या किया, इन सारे नंबर्स को add. So when we added these numbers, we get 11 plus 10, which is 21. So here the answer is 21 upon 30. So total जो पैसे खर्च किए थे रोहन ने अपनी सैलरी के, the money he spent amount is 21 upon 30. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना सैलरी उसने सेव किया. तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 1 में से इसे, टोटल उसकी सैलरी 1 थी, उसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21 upon 30. So इसकी सेविंग हमें पता चल जाएगी. So let's find out the LCM again. अब इसे भी हम सेम तरीके से करेंगे. 31, so it will be 30 minus 21. So the answer will be 9 upon 30. तो उसने जो सेव किए हैं पैसे वो हैं 9 upon 30. तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, so children, this is the way, this is the money that he has saved. So now let's do question number 2. Amar bought a cloth that was 11 upon 5 meter long. He used 3 1 upon 5 meter to make a curtain. So इतना क्लोथ उसने खरीदा था, उसमें से इतना उसने खर्च कर दिया. How much cloth was left with him? So हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Now let's do it. 5 11s are 55 and plus 4, it's 59 upon 5 minus 5 to the 15 plus 1 16 upon 5. So जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 43 upon 5. So इतना क्लोथ उसके पास बचा हुआ. Next, question number 3. Anil bought 3 1/2 kg of apples, 3
3 kg of mangoes and 4 kg of guavas. उसने ये सारे फ्रूट्स खरीदे. How much fruit did he buy in all? So इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. The technique that I tell you, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसको सॉल्व करना है और इसमें ऐड करना है. Kamal plays for 3/4 hour in the morning and 1/4 hour in the evening. How much time did he spend in play? इसमें भी सेम हमें ऐड करना. So similarly, children, you have to complete the rest of the questions here. So with this, we have completed the chapter fraction. I hope that you have understood it. And you have to complete the exercises given to you as homework. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.